Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is the second lecture of chapter number 9 and this is second theorem of chapter number 9. So first of all, we have to study the statement. The statement of the theorem is a straight line drawn from a center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. So it means that any straight line drawn from the center to a chord, such chord which is not a diameter, so that will bisect the chord, means that line will bisect the chord. So we have to prove that any line segment drawn from the center of a circle to a chord, such chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. Means we have to prove this, that we have a circle with center O. OD is a line segment that is drawn from the center of the circle which bisect a chord AB. So we have to prove this, that OD is perpendicular to AB. So first of all, we have to write given. Here given is, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया है. So first of all, we take a circle with center O. Look at this. We have taken a circle with center O. AB is chord and OD is any point. Here this is not. This is a circle with center O. AB is chord which is not diameter and OM is a line segment from the center which bisect this chord AB. So what is mean by bisect? Bisect mean which divide in two equal parts. That is, it means AM distance is congruent to MB distance. So first of all, we have to write here in given. So given is M is a midpoint of any chord AB of a circle with center O, where chord AB is not a diameter of the circle. So it means that this is a circle, AB is chord which is not a diameter and OM is a line segment from the center which divides or bisect this AB into equal parts. So we have written this thing in given. यही चीज़ें हमने गिवन में लिख लिया कि गिवन क्या है कि M हमारे पास एक मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? ऑफ एनी कॉर्ड AB. लेकिन ये कॉर्ड के लिए ज़रूरी है कि ये डायमीटर नहीं होगा. ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O वेयर कॉर्ड AB इज़ नॉट अ डायमीटर. अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमने ये प्रूफ करना है कि ये OM जो सेंटर से लाइन आ रही है AB पर, ये परपेंडिकुलर है. दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB. तो ये चीज हमने टू प्रूव में लिखा है कि OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB. इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि ज्वाइन O विद A एंड B. सेंटर वाला पॉइंट O जो है वो A और B के साथ ज्वाइन कर ले जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, और M के साथ भी ज्वाइन कर ले तो OM हमारे पास वही लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से कॉर्ड AB पर आ रही है या AB को बाइसेक्ट कर रहा है. सो टू प्रूव में हम लिख रहे हैं कि OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, और कंस्ट्रक्शन इसका ये हो जाएगा कि ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O and label the angles as angle 1 and angle 2. Look at figure. This one is angle 1 and this one is angle 2. Now proof. अब प्रूफ में अगर आप फिगर को देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, OAM
और OBM दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास हमने शो करने हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले हमने ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने शो कर लिए तो इसका मतलब ये है कि OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें हम कुछ प्रीवियस थ्योरम और प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है OAM एंड OBM। तो हमने प्रूफ में यहाँ पे लिख लिया कि इन ट्राइंगल OAM and OBM measurement of AM is congruent to measurement of BM। तो यहाँ पे देखें AM is congruent to BM या measurement of AM is equal to measurement of BM। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने गिवन में लिखा है। गिवन में क्या लिखा था? गिवन में हमने लिखा था कि M is the midpoint of एनी कॉर्ड AB। तो इसका मतलब ये है कि AM और BM डिस्टेंस सेम है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा गिवन। अब टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सेकंड पार्ट देखें, AM इज इक्वल टू BM, ये हमने गिवन में लिख लिया। अब OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको याद होना चाहिए कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। हाउ, किस तरह ये OA और OB इक्वल है? तो हमने सर्कल में पढ़ा था कि सर्कल के तमाम रेडियाई की लेंथ जो है वो सेम होती है। अगर एक सर्कल है उसके तमाम रेडियाई का लेंथ जो है वो सेम होगा। सो यहाँ पे OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB हम इसलिए लिख रहे हैं कि दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो रीजन में हमने लिखा है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अनदर रिजल्ट, OM is congruent to OM या measurement of OM is equal to measurement of OM because in figure if you look at this OM is common to this triangle as well as to this triangle। ये OM हमारे पास कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स का। जिस तरह अगर हमारे पास दो रूम्स एडजेसेंट रूम्स है उसके अंदर एक दीवार जो है वो कॉमन होती है, वो दोनों रूम्स के साथ होता है। तो इसी तरह ये दोनों एडजेसेंट ट्राइंगल्स है तो OM इन दोनों का कॉमन साइड है। तो इसलिए हमने यहाँ गिवन में लिख लिया कि OM इज इक्वल टू OM बिकॉज दिस इज कॉमन साइड। अब हमने 9 में एक थ्योरम पढ़ लिया था, उस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करते हैं। वो थ्योरम क्या था? पहला थ्योरम पहले चैप्टर का तीसरा थ्योरम था। वहाँ पे हमने लिखा था कि इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो ये दो ट्राइंगल्स है। इफ थ्री साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखें यहाँ पे OAM हमारे पास एक ट्राइंगल है, OMB हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है। इन दोनों की करेस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं तो OAM के तीन साइड और OBM के करेस्पॉन्डिंग तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है। सो इट मीन्स बाय दैट थ्योरम that these two triangles are congruent. So therefore triangle OAM is congruent to triangle OBM। इस तरह लिखें, या measurement of triangle OAM is equal to measurement of triangle OBM। यहाँ इसके साथ मैंने M नहीं लिखा, यहाँ पे M होना चाहिए था, दूसरे के साथ M है। या तो इसके साथ अगर M नहीं है तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट डालेंगे, या इसके साथ M लिख ले तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल OBM। क्यों ये दोनों इक्वल है उस थ्योरम का हवाला हम देंगे, और वहाँ पे हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा था कि अगर इस थ्योरम का हम रेफरेंस देंगे तो इस तरह हम देंगे कि साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। एक ट्राइंगल के तीन साइड और दूसरे के करिस्पॉन्डिंग तीन साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है सो द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। So these triangle are congruent because the three side of this triangle are congruent to the corresponding three side of this triangle. Therefore, triangle OAM is equal to triangle OBM in all respects. So here we take angles.
So therefore measurement of angle 1 is congruent to measurement of angle 2. These are corresponding angles. So these are corresponding angles. Measurement of angle 1 is this one and measurement of angle 2 is this one. So these are congruent. अब यहाँ पे ये क्यों congruent है? क्योंकि रीजन में हमने लिखा है, देखिए, corresponding angles of the congruent triangles. ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्राइंगल congruent triangles हैं और ये दोनों इसके corresponding angles हैं. अब corresponding angles का क्या मतलब है? corresponding angle का मतलब ये है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से काट दूँ और इस ट्राइंगल के ऊपर रख लूँ, या इस ट्राइंगल को यहाँ से काट के इसके ऊपर रख लूँ, तो ये B एंगल मेरे पास A एंगल के ऊपर आ जाएगा, ये 2 एंगल 1 के इक्वल ऊपर आ जाएगा और ये एंगल इस एंगल के ऊपर आ जाएगा. तो इट मीन्स कि दीज आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो measurement of angle 1 is congruent to measurement of angle 2. इसकी रीजन में हमने लिख लिया corresponding angles of the congruent triangles और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया. अब हम थोड़ा सा अलजेब्रिक काम करते हैं, मैथमेटिकल काम, या हम लेते हैं कि measurement of this angle 1 plus measurement of this angle 2 which makes angle AMB, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 से कौन सा एंगल बनता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB विच इज अ स्ट्रेट एंगल. और आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री होती है. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ मैंने लिख लिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Why? Because these are supplementary angles. यहाँ पे आप straight angle भी लिख सकते हैं या दोनों supplementary angle है. Supplementary angle भी आपको पता होना चाहिए कि such two angles whose sum is equal to 180 degree are called supplementary angles. और एक complementary angles है. Complementary angles क्या है? कि such two angles whose sum is equal to 90 degree, those are called complementary. लेकिन यहाँ भी क्या है? यहाँ पे हम supplementary angles का postulate यूज कर रहे हैं. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree because supplementary angles है. अब मैं इस 2 की जगह 1 पुट कर रहा हूँ क्योंकि 1 इक्वेशन में अगर आप देखें तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 की इक्वल है. आप 1 की जगह 2 पुट कर सकते हैं या 2 की जगह 1 पुट कर लें. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. इस 2 की जगह मैंने एंगल 1 लिख लिया, यूजिंग इक्वेशन 1 मैंने किया. अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब 2 से अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 180 को अगर 2 से डिवाइड कर ले तो 90 आ जाएगा. सो इट मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन में मैंने लिख लिया कि बिकॉज डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2. As angle 1 is congruent to 2, from equation 1 we can write angle 2 is congruent to 90 degree. एंगल 1 90 डिग्री की इक्वल है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज एंगल इक्वेशन 1 में 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल है. तो अगर एक की मेजरमेंट 90 डिग्री की है तो दूसरा भी 90 डिग्री का होगा. तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1 और 2 कुछ किस एंगल से, किस लाइन से बने हुए हैं? ये OM लाइन की वजह से बने हैं. तो इट मीन्स कि OM लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB और AB क्या था? कॉर्ड था. सो द लाइन सेगमेंट, यानी हमने प्रूव कर लिया कि एनी लाइन सेगमेंट विच इज फ्रॉम द सेंटर एंड बाइसेक्ट अ कॉर्ड so is perpendicular to that chord. So hence यहाँ पे हमने प्रूव किया कि OM is perpendicular to AB. OM क्या था? OM हमारे पास लाइन सेगमेंट था जो सेंटर से आ रहा था और कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा था और AB हमारे पास कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है. तो OM और AB का आपस में रिलेशन क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे और यही हमने प्रूव करना था. हेंस अगर आप टू प्रूव में देखें तो यही चीज हमने लिखी थी कि OM इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB. हेंस प्रूव्ड. यहाँ हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है. अगर इसमें कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल. थैंक यू.